میرا خیال ہے کہ تمہارا شمار خوش قسمت ترین افراد میں ہوتا ہے۔ تم پہلے خوش نصیب ہو جسے لی کوان نے اس مقصد کے لیے چنا ہے۔ رینڈل کی بات پر میں نے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری اہلیت کے بارے میں فیصلہ کس بنیاد پر کیا گیا ہے؟ لی کوان نے کہا، مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تمہارے پاس بہت موقع تھا، مگر تم نے اپنی آزادی کو قربان کر دیا، ایک کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ تمہارا سب سے بڑا امتحان تھا۔ میں نے کہا، تم نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا مسٹر لی کوان۔ اگر میں تم پر حملہ کر بیٹھتا تو کیا ہوتا؟ لی کوان نے کہا، اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا کہ میں تمہیں اپنی شاگردی میں نہ لیتا۔ میں نے کہا، مجھے اتنا بے صلاحیت بھی مت سمجھو، یہ کہ اس صورت میں تم فوری طور پر شکست تسلیم کر کے اپنی جان بچا لیتے۔ لی کوان نے بڑے باوقار انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا، میں دنیا کا واحد ماسٹر ہوں، اور ماسٹر کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس پر دھوکے سے بھی قابو نہیں پایا جا سکتا۔ میں نے بے اعتباری سے کہا، یہ تو صرف تمہارا بیان ہے، میں اس پر کس طرح یقین کر لوں؟ لی کوان نے کہا، اب شاید تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا ہے، تم چاہو تو اب بھی مجھ سے مقابلہ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، میں ایک بار فیصلہ کرتا ہوں اور پھر اس پر قائم رہتا ہوں، وہ اور لوگ ہوتے ہوں گے جو اپنے فیصلوں پر پچھتاتے ہوں گے۔ مجھے تو صرف اس بات پر حیرت ہے کہ اگر میں تم پر عقب سے حملہ کر دیتا تو کیا ہوتا؟ رینڈل نے کہا، تم یہ کیوں بھول رہے ہو مسٹر علی کہ لی کوان تمہارا ہونے والا استاد ہے؟ اس میں کوئی غیر معمولی بات ہوگی تبھی تو اسے تمہارا استاد مقرر کیا گیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے یہ بات ماننے میں تعامل نہیں ہے کہ مسٹر لی کوان غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں، لیکن اب ان کی وہ عمر نہیں رہی جس میں آدمی اپنے فن کو پھرتی سے استعمال کر سکتا ہے۔ میرے اور ان کے درمیان 20 سال سے زیادہ کا فرق ہے۔ میں ان پر حملہ کر بیٹھتا تو انہیں کچھ نہ کچھ نقصان تو ضرور پہنچتا۔ میری بات سن کر لی کوان مسکرایا۔ اس کے مسکرانے کا انداز ایسا تھا جیسے کسی بچے کی ضد پر کوئی بڑا آدمی مسکراتا ہے۔ اس نے کہا، تم حجت بہت زیادہ کرتے ہو، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ فنی تربیت کے دوران یہ عادت تمہارے لیے بہت مضر ثابت ہوگی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، کہا، میں سمجھتا ہوں، لیکن جو بات بہت زیادہ ناممکن محسوس ہو رہی ہے اس کا اظہار کیے بغیر بھی تو نہیں رہا جا سکتا۔ لی کوان نے کہا، میں تمہیں اپنی شاگردی میں قبول کر چکا ہوں، اس لیے تربیت شروع ہونے سے قبل میں تمہیں مطمئن کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ انگلی دیکھ رہے ہو؟ لی کوان نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت بلند کی، بولا، محض اس ایک انگلی سے میں تمہارا کان تمہارے جسم سے علیحدہ کر سکتا ہوں، لیکن میں محض تمہارا کان چھونے پر اکتفا کروں گا، پہلے دایاں کان، اس کے بعد بایاں اور گدی، ٹھیک ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے کر کے بھی دکھا سکتا ہے۔ لی کوان نے کہا، تمہارا کان چھونے کے لیے ظاہر ہے مجھے تمہارے قریب آنا پڑے گا۔ تمہارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پھرتی کا مظاہرہ کر کے بچ جاؤ، بلکہ تم روکنے کے لیے مجھ پر حملہ بھی کر سکتے ہو، خواہ اس سے مجھے کوئی بڑا نقصان ہی کیوں نہ پہنچائے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، کہا، نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں بچنے کی کوشش تو ضرور کروں گا، مگر تم پر جوابی حملہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہوگی۔ لی کوان نے کہا، تم کیا کرتے ہو کیا نہیں، اس سے مجھے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں، میں تو تمہارے اصرار پر ایک مظاہرہ کر رہا ہوں۔ چلو سنبھلو، میں تمہاری طرف آ رہا ہوں، بعد میں نہ کہنا کہ تم تیار نہیں تھے۔ میں سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے خاصا ناممکن قسم کا دعویٰ کیا تھا، مگر اس کے باوجود میری خود اعتمادی بری طرح متزلزل تھی۔ معلوم نہیں کیوں مجھے یقین تھا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے کر کے دکھا دے گا۔ لی کوان کا جسم متحرک ہوا، وہ میرے بائیں پہلو کی طرف جھپٹا۔ میں اسے بچنے کے لیے دائیں طرف ہٹ گیا، لیکن وہ بائیں طرف آیا ہی کب تھا؟ اس کی ہلکی سی جھلک میں نے اپنے دائیں جانب دیکھی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اپنے دائیں کان پر اس کی انگلی کی دستک محسوس کی۔ میں بڑی تیزی سے ایڑی کے بل گھوما، لیکن میں اس کی دوسری جھلک بھی نہ دیکھ سکا۔ اس نے البتہ نہ صرف میرے بائیں کان کو چھوا بلکہ میری گدی پر ایک ٹہوکا لگا دیا، اور اس کے بعد اسی جگہ کھڑا ہوا نظر آیا جہاں سے اس کا سفر شروع ہوا تھا۔ لی کوان نے پوچھا، کیا خیال ہے علی، اب تمہیں یقین آیا؟ میں نے متحیرانہ انداز میں اسے دیکھ کر پلکیں جھپکائیں، کہا، جو کچھ ابھی میرے سامنے ہوا ہے وہ کسی اور نے مجھ سے بیان کیا ہوتا تو میں ہرگز یقین نہ کرتا۔ لی کوان نے کہا، میں اپنا فن تمہیں منتقل کر دوں گا، تم میرے شاہکار ہوگے، ناقابل تسخیر۔ رینڈل نے مضطربانہ انداز میں کہا، اسے جلد از جلد ڈیتھ مشین میں تبدیل کر دو لی کوان، تاکہ اس کی صلاحیتیں مسلم دنیا کے خلاف استعمال کی جا سکیں۔ لی کوان بے رخی سے بولا، یہ جلدی کا کام نہیں ہے ماسٹر بننے میں عمریں بیت جایا کرتی ہیں۔ رینڈل بولا، اتنا انتظار تو نہیں کیا جا سکتا لی کوان، ایگلر میں ویسے ہی اچھے ایجنٹوں کی کمی ہے۔ لی کوان نے کہا، تم تو بس ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے چکر میں لگے رہتے ہو، 2 سال تو اسے مارشل آرٹس کی بنیادی باتیں سکھانے میں ہی لگ جائیں گے۔ رینڈل بولا، تمہیں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کا عرصہ دیا جا سکتا ہے، اتنے ہی عرصے میں جو کچھ سکھا سکتے ہو سکھا دو، ہم کسی بین الاقوامی مقابلے میں شرکت کی تیاری نہیں کر رہے۔ لی کوان نے کہا، مارشل آرٹس کوئی مذاق نہیں ہے موشے ہاورڈ، 6 ماہ میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ رینڈل بولا، تم نے جس شخص کو اپنی شاگردی میں لیا ہے وہ ہر امتحان میں پورا اترا ہے،
ये कोई आम आदमी नहीं है, इसकी सीखने की सलाहियतें भी गैर मामूली होंगी। उसके बावजूद अगर तुम 2 साल पर इसरार करो तो तुम्हारा क्या कमाल है। ये तो वो शख्स है जिसने अपनी मौजूदा हालत में भी दुनिया भर के मायनाज एजेंटों को नाको चने चबवा दिए। ली कुआन ने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम लोगों को तो बस काम चलाने से गरज होती है। ठीक है, मैं इसे 6 माह में ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये मेरे ख्वाबों की ताबीर नहीं बन सकेगा। अगर ये किसी महाज पर शिकस्त से 2 चार हो जाए तो ली कुआन को इल्जाम मत देना। जो कुछ भी होगा तुम्हारी बेसब्री का नतीजा होगा। रेंडल की आवाज खुशी की शिद्दत से लरज रही थी। बोला, मुझे मंजूर है, तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दिया जाएगा, बस तुम अभी से इसकी तरबियत शुरू कर दो। अचानक बर्ड ने हाथ उठाकर कहा, मुझे भी कुछ कहना है जनाब। गोइटे हिल एयरपोर्ट पर आपने मुझसे वादा किया था कि आप। रेंडल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपना वादा याद है मिस्टर बर्ड। तुम्हारे चीफ ने मुझे मुश्किल में फंसा दिया है। अगर वो मुझे शनाख्त न करता तो मैं अपना वादा पूरा करने से बरिउज़िम्मा हो जाता, इसलिए कि वादा तो कर्नल श्वालू ने किया था। बर्ड ने बहुत खुश होकर कहा, तो फिर मैं कोई अच्छी उम्मीद रखूं? रेंडल ने कहा, बिल्कुल मिस्टर बर्ड, जिंदगी के लम्हात को रंगीन बनाने में कोई मुजायका नहीं होता। मैं आज ही तुम्हारे लिए बंदोबस्त करवा दूंगा। हम उस इमारत से बाहर आए तो मरजाना वहीं रह गई थी और ली कुआन हमारे साथ ही बाहर आया था। ली कुआन ने कहा, अब तुम लोग बैरक में नहीं रहोगे। फिर सामने से गुजरते हुए एक शख्स को आवाज देकर उससे कहा कि हमें 11 नंबर में छोड़ा है। मैंने उस शख्स के साथ जाने के लिए कदम बढ़ाया तो ली कुआन ने मुझे टोक दिया, तुम कहाँ चले? तुम्हें तो अब 6 महीने का अरसा मेरे साथ गुजारना है, तुम मेरे साथ ही 12 नंबर में रहोगे। मैंने तहजीब और बर्ड को उस शख्स के साथ जाने का इशारा किया और खुद ली कुआन के साथ चल पड़ा, जिसका रुख ग्राउंड की तरफ था। ग्राउंड में तेज चमकीली धूप फैली हुई थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी और हवा अगरचे मरतूब और ठंडी थी, मगर वो दर्जा हरारत तो कम नहीं कर सकती थी। ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते मैं पसीने में शराबोर हो चुका था। ली कुआन ने एक तरफ इशारा किया जहां से हम सुबह गुजर कर यहाँ आए थे। वो सामने जंगल दिख रहे हो, यहाँ से वहां तक का फासला 500 मीटर के करीब होगा। तुम ये फासला कम से कम कितनी देर में तय कर सकते हो? मैंने कहा, मेरा ख्याल है मुझे 3 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ली कुआन ने बेयकीनी से मुझे देखा, बोला, 3 मिनट? 3 मिनट में 500 मीटर का मतलब समझते हो? तुम्हारे दौड़ने की रफ्तार सिर्फ 10 किलोमीटर फी घंटा है। मैंने कहा, मैंने अंदाजन कहा था, मुमकिन है ये फासला मैं 2 मिनट में ही तय कर लूं। ली कुआन ने कहा, यह भी बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहिरा तो कोई कछुआ भी कर लेगा। मैंने ली कुआन को हैरत से देखा। कहा, मैं आदमी हूँ मिस्टर ली कुआन, कोई रेसिंग कार नहीं हूँ। ली कुआन ने कहा, रेसिंग कार इंसान ने बनाई है और इंसान को ये जेब नहीं देता कि अपनी ही बनाई हुई किसी चीज से शिकस्त खा जाए। मैंने कहा, कल को तुम ये दावा भी कर सकते हो कि आदमी को हवाई जहाज से भी तेज उड़ना चाहिए। ली कुआन ने गुस्सीले लहजे में कहा, उड़ना इंसान का काम नहीं है, इसलिए ये बात अहमकाना है। अब तुम घड़ी में वक्त देख कर दौड़ना शुरू करो। तुम्हें मुझसे पहले वहां पहुंचना है और अपनी इंतहाई रफ्तार से पीछे देखे बगैर दौड़ना है। मैंने सर को इस्बाती जुम्बिश दी और अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर नजरें जमा दी। जैसे ही सेकंड की सुई 12 के हिस्से पर पहुंची, मैंने दौड़ लगा दी। ना तो मैंने ली कुआन से कुछ कहने की जहमत की थी और ना ही मैंने ये देखने की कोशिश की थी कि वो भी मेरे पीछे आ रहा है या नहीं। उसने एक बार मुझे शिकस्त दी थी और अब मैं उसे हरा कर बदला लेने के मूड में था। वो बूढ़ा आदमी था, लाख फुर्तीला होने के बावजूद 500 मीटर के फासले तक मुझसे ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता था। मैं इंतहाई रफ्तार से दौड़ रहा था। उस वक्त मेरा मकसद सिर्फ एक ही था, जिस तरह भी मुमकिन हो ली कुआन को शिकस्त से हमकनार करूं, ताकि वो आइंदा मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें न कर सके। मैं उसे ज्यादा से ज्यादा फासले से हराना चाहता था। उसने मेरी रफ्तार को कछुए से तशबीह देकर मेरी तौहीन की थी। मैं उसे सरफ नजर नहीं कर सकता था। ग्राउंड के इख्तिताम पर पहुंचकर मैंने सबसे पहले घड़ी पर नजर डाली। 500 मीटर का फासला मैंने सिर्फ 1 मिनट और 55 सेकंड में तय कर लिया था। मेरे सामने ही जंगल का दाखिली रास्ता था। घड़ी पर नजर डालने के बाद मैं मुड़ा और ली कुआन की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर वो कहीं नजर न आया। उसे कहीं मौजूद न पाकर पहले तो मैं हैरान हुआ, फिर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे ग्राउंड में दौड़ाकर खुद वो अकब से खिसक गया था। तभी मैंने ली कुआन की आवाज सुनी, तुम मुझे गलत जगह तलाश कर रहे हो। आवाज अकब से आई थी। मैं बौखलाकर मुड़ा। वो जंगल के दाखिली दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। मेरे लिए उसकी वहां मौजूदगी कतई नाकाबिले यकीन थी। यहाँ तक पहुंचने के लिए उसका मेरे बराबर से गुजरना लाजमी था। ऐसी कोई सूरत नहीं थी कि वो मेरी नजरों से बचकर निकल सकता। फिर वो वहां कैसे पहुंचा? ली कुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हैरत बजा है अली। मैं ग्राउंड के किनारे किनारे दौड़ता हुआ दूसरे रास्ते से जंगल में दाखिल हुआ था और अंदर से घूमकर इस तरफ से बाहर आया हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं देख सके। मैंने कहा, इस तरह तो तुम्हें मुझसे दुगना फासला तय करना पड़ा होगा। मेरी हैरत बढ़ गई। ली कुआन बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। बोला, तो क्या हुआ?
मास्टर फासलों से नहीं घबराया करते। मैंने कहा, दुगना फासला तय करने के बावजूद तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए? ली कुआन ने कहा, मैं तुम्हें किसी हद तक समझ चुका हूं अली। जब तक तुम दिल से किसी की बरतरी तस्लीम नहीं कर लो, उसके कहने पर आंखें बंद करके अमल नहीं कर सकते। और एक शागिर्द के लिए जरूरी है कि उस्ताद के कहने पर बिला चूं चरां अमल करें। इसके बगैर कामयाब होना मुश्किल होता है। मुझे चूंकि बहुत कम वक्त दिया गया है, इसलिए मैंने ये मुजाहिरा करना जरूरी समझा ताकि तुम मेरी बरतरी पूरी तरह तस्लीम कर लो और मुझसे कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा सीखो। मैं उसे क्या बताता कि मैंने उसकी बरतरी उसे देखते ही तस्लीम कर ली थी। जहां तक मैंने अंदाजा लगाया था, उसके मुताबिक वो सिर्फ एक मुलाजिम था, एक ऐसा मुलाजिम जो अपनी बातें मनवा भी सकता था। उसकी मुलाजिमत की नौयत क्या थी ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि बज़ाहिर वो मेरे अज़ाइम की राह में हायल होता नजर नहीं आ रहा था, बल्कि अपना फन मुझे मुंतकिल करके वो मुझसे मुआवनत कर रहा था। रेंडल हार्वर्ड ने मेरे बारे में जिस किस्म के अज़ाइम जाहिर किए थे, उनके पेश नज़र ये मुमकिन नहीं था कि जो कुछ मैं सीखता उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता। लेकिन कोई नहीं जानता कि मुस्तकबिल के सफ़हात पर क्या तहरीर है। हम में से हर शख्स अपने तौर पर मुख्तलिफ मंसूबे बनाता है, मगर वक्त के बेरहम हाथ सब कुछ तब्दील करके रख देते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि जो कुछ हम सोचें वो मिन्नो अन पूरा हो जाए। मेरे साथ भी यही कुछ हो रहा था। मैंने रेंडल को घेरने का मंसूबा बनाया था, मगर खुद उसके जाल में फंस गया था और इतनी बुरी तरह फंसा था कि हर काम अपनी मर्जी से करने के बावजूद रेंडल की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। वो मुझे अपने मजमूम अज़ाइम के लिए मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था और मैंने महज इस तवक्को पर खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया था कि शायद कुदरत मुझे कोई मौका फराहम कर दे और जो मोहलक फन मैं ली कुआन से सीखूं उसे यहूदियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं। आखिरकार मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मैंने तुम्हारी बरतरी तस्लीम कर ली है ली कुआन। बेफिक्र हो, जो कुछ कहोगे मैं उस पर बेचूचरा अमल करूंगा। ली कुआन ने मानी खेज अंदाज में कहा, सोच लो अली, तुम बहुत बड़ी बात कह रहे हो। मुमकिन है तुम अपने कौल पर पूरे न उतर सको। मैंने कहा, यह सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन होता मास्टर जब मुझे तुम्हारी नीयत पर शुबा होता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी बिसात भर कोशिश करूंगा कि तुम्हारी हर बात पर अमल करूं। ली कुआन की आंखें चमकने लगी। बोला, किसी को अपना शागिर्द बनाने के लिए मेरी 3 शराइत थीं, जिनसे मैंने मोशे हार्वर्ड को भी आगाह कर दिया था। मैं सिर्फ उस शख्स को शागिर्दी में ले सकता था जो मेरी तीनों शराइत पर पूरा उतरता। जानते हो वो 3 शराइत क्या थी? सलाहियत, ज़हानत और आला ज़र्फी। तुम इन तीनों सलाहियतों का हसीन मजमुआ हो। मैं तुम्हें सिर्फ अपना फन मुंतकिल करूंगा। मुझे यकीन है कि उसके अलावा जो बातें होंगी वो तुम खुद समझ लोगे। मैं उसे उलझे हुए अंदाज में देखता रहा। मालूम नहीं जो कुछ उसने कहा था उसका मतलब क्या था, लेकिन मैंने उससे कोई सवाल न किया। उसने भी मजीद कोई वजाहत नहीं की और मुझे अपने साथ जंगल में ले गया। ली कुआन ने कहा, इंसान अशरफुल मखलूकात है। वो जानवरों को अपनी अक्ल से तो जेर कर लेता है, मगर मुकाबला करके उन्हें जेर नहीं कर सकता। क्या तुम इसकी वजह बता सकते हो? मैंने कहा, मेरे ख्याल में इसकी 3 अहम वजूहात हैं, ताकत, फुर्ती और बेहिसी। ली कुआन ने कहा, तीसरी बात बिल्कुल गलत है। जानवरों की हिस्सियात इंसानों से कहीं बेहतर होती हैं, खास तौर पर सूंघने, सुनने और देखने की सलाहियत। मैंने उससे इत्तेफाक किया, कहा, तुम ठीक कह रहे हो। इन मामलात में जानवर इंसानों पर फौकियत रखता है। ली कुआन ने कहा, कुदरत ने इंसान को हर सलाहियत से नवाजा है, साथ ही ये गुंजाइश भी रखी है कि वो अपनी सलाहियतों को जितना चाहे बढ़ा ले। हम चूंकि फितरतन आराम तलब होते हैं, इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी हिस्सियात मांद पड़ जाती हैं, वरना यह भी मुमकिन है कि हम अपनी इन हिस्सियात को जानवरों के बराबर बढ़ा लें। मैंने कहा, हम अपनी सलाहियतों में कितना ही इजाफा क्यों ना कर लें, महज अपनी जिस्मानी सलाहियतों की बुनियाद पर जानवरों को शिकस्त नहीं दे सकते। ली कुआन ने कहा, मगर इंसानों के लिए नाकाबिल तस्खीर साबित हो सकते हैं। मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करने के लिए अपनी हिस्सियात को तरक्की देना बेहद जरूरी है। याद रखो, दरिंदों से निमटने के लिए दरिंदों वाले औसाफ का हामिल होना जरूरी है। ली कुआन मुझे लेक्चर देता रहा। उसके लेक्चर का महवर दरिंदों के औसाफ थे। मिसाल के तौर पर शेर जब जंगल में शिकार के लिए निकलता है तो उसके चलने से जरा भी आहट पैदा नहीं होती। हालांकि जंगल में सूखी हुई शाखें भी होती हैं जो पैरों के नीचे आकर टूट भी सकती हैं, मगर शेर और दीगर जंगली दरिंदे उनसे किस तरह बचकर निकलते हैं। मैं उसकी कही हुई हर बात का एक एक लफ्ज ज़हन नशीन कर रहा था। उसकी हर बात बहुत कारामद थी। मैंने जूडो कराटे सीखा जरूर था, मगर वो सिर्फ जिस्मानी दाव पेच तक ही महदूद रहा था, और ली कुआन मुझे जो कुछ बता रहा था वो उससे कहीं आगे की चीजें थीं। ली कुआन ने कहा, एक और चीज भी है जिसे रफ्तार कहते हैं। अक्सर औकात हम रफ्तार के बल पर हरीफ को मात दे सकते हैं। तुम्हें अपनी रफ्तार में भी इजाफा करना पड़ेगा। तुम्हारी मौजूदा रफ्तार बड़ी मायूस कुन है। फिर ली कुआन ने मुझे अजीब किस्म की मशकें शुरू करा दी।
मगर ली कुआन ने मुझे ऐसे गुर बताए जिनकी वजह से मुझे वो मुश्किल मशकें आसान मालूम होने लगी। पहले रोज मुझे 4 घंटे तक जिस्मानी वर्जिशें करना पड़ी। मुझे अच्छी खासी थकन महसूस होने लगी, मगर मैंने उसका इजहार न होने दिया। दोपहर का खाना भी वर्जिशों की नजर हो गया। शाम 5 बजे के करीब ली कुआन ने मुझसे कहा, तुम्हें भूख लग रही होगी। मैंने कहा, भूख तो लग रही है मास्टर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरे जिस्म में बहुत तवानाई मौजूद है। ली कुआन मुस्कुरा दिया, बोला, 6 महीने तक हर चीज में मेरे पाबंद रहोगे। आओ मेरे साथ। वो मुझे लेकर समंदर के किनारे पहुंच गया। ये जजीरे की शुमाली सम थी। समंदर से कुछ ही फासले पर चौलाई की किस्म की घास लहलहा रही थी। ली कुआन ने कहा, इसमें से तुम्हें 2 मुट्ठी भर घास चबाकर निगलनी है। मैं बौखला कर उसकी तरफ देखने लगा, मगर वो बेहद संजीदा था। मैंने महज एक लम्हे के लिए उसकी बात पर गौर किया और फिर मैं खुद रो घास की तरफ बढ़ गया। घास का जायका बहुत तल्ख था, मगर मैं दिल पर जबर करके किसी न किसी तरह उसे निगल गया। ली कुआन ने तहसीन आमेज अंदाज में कहा, बहुत खूब अली, ये 2 मुट्ठी घास तुम्हें रोज सुबह शाम चबाकर निगलनी होगी। आओ अब वापस चलते हैं। ली कुआन मुझे हैंगर नुमा इमारत के अक्ब में बने हुए हट नुमा एक मकान में ले गया, जिस पर 12 का हिंसा लिखा था। ली कुआन ने कहा, तुम्हारे साथी 11 नंबर में हैं। तुम मेरे साथ 12 नंबर में रहोगे। अगर तुम चाहो तो 1 घंटे के लिए अपने साथियों से मिल सकते हो, मगर ये याद रखना कि 6 महीने तक तुम सिन्फ नाजुक से दूर ही रहना। मैंने कहा, बेफिक्र रहो मास्टर, मैं माजी में भी हमेशा इस नेमत से दूर ही रहा हूँ। ये कहकर मैं 11 नंबर की तरफ बढ़ गया। तेजी मुझे देखते ही तीर की तरह मेरी तरफ आ गई। उसने मुझे झंझोर डाला। बोली, तुम्हें क्या हो गया है अली? तुमने इन लोगों के मुकाबले में शिकस्त कैसे कबूल कर ली? तुम ऐसे तो नहीं थे। मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा, अब भी नहीं हूँ। मैंने शिकस्त कबूल नहीं की, बल्कि हालात से मसालेहत की है। वो बोली, ये कैसी मसालेहत है जिसके नतीजे में जिल्लत और बेबसी का एहसास हो रहा है? मैंने कहा, तुम्हारे ख्याल में मेरा रवैया कैसा होना चाहिए था तहसीब? क्या मैं इस आलम में इनसे टकराने की कोशिश करूं और खुद तबाह हो जाऊं? वो बोली, तो क्या तुम खुद को इनके रहमो करम पर छोड़ दोगे कि वो तुम्हारी शख्सियत तब्दील करके तुम्हें फलस्तीन और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करें? मैंने कहा, ये उनका मंसूबा है तहजीब। क्या जरूरी है कि वो कामयाब हो जाएं? शख्सियत की तब्दीली मजाक तो नहीं होती। आदमी को खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। 6 माह बाद मुझे एक बार फिर उसी हैंगर नुमा इमारत में ले जाया गया। तहजीब और बट को हॉल में रोक दिया गया, जबकि मैं एक और दरवाजे से गुजरकर दूसरे हिस्से में ले जाया गया, जहां देव हैकल मशीन नस्ब थी। ये मकाम पिछली बार हमें फिल्म में दिखाया गया था। मेरे साथ मास्टर ली कुआन भी था। ली कुआन ने 6 माह तक दिन रात मुझे तरबियत दी थी, और उसी की मेहनत का नतीजा था कि मैं खुद को तवानाइयों से भरपूर एक नई शख्सियत महसूस कर रहा था।